فارمر پریزیڈنٹ لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن سر اسٹیج پر تشریف لائیں. میں ریکویسٹ کروں گا آپ کے گیسٹ آف آنر رجسٹرار کمپنی رجسٹریشن آفس لاہور SECP شہباز سرور صاحب سے سر اسٹیج پر تشریف لائیں. میں ریکویسٹ کروں گا آج کے اسپیکر آصف مظفر شیخ صاحب سے سر آپ اسٹیج پر تشریف لائیں. میں ریکویسٹ کروں گا جوائنٹ سیکرٹری لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن ذیشان طاہر بٹ صاحب سے سر آپ اسٹیج پر تشریف لائیں. میں ریکویسٹ کروں گا فنانس سیکرٹری احتشام احمد گجر صاحب سے آپ اسٹیج پر تشریف لائیں. میں ریکویسٹ کروں گا چیئرمین کوآرڈینیشن کمیٹی SECP لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن شہباز صدیق صاحب سے سر آپ اسٹیج پر تشریف لائیں. اس کا نمبر بھی آپ کو بھیجا میں نے، وہ نمبر بھی 834 میں نے جو لوکیشن ڈالی نا. میں ریکویسٹ کروں گا ایڈیشنل جوائنٹ رجسٹرار SECP حسن زیدی صاحب سے سر آپ اسٹیج پر تشریف لائیں. میں ریکویسٹ کروں گا اسسٹنٹ رجسٹرار SECP عائشہ فاروق صاحبہ سے میڈم آپ اسٹیج پر تشریف لائیں. میں ریکویسٹ کروں گا اسسٹنٹ رجسٹرار SECP سعدیہ اقبال صاحبہ سے میڈم آپ اسٹیج پر تشریف لائیں. میں ریکویسٹ کروں گا اسسٹنٹ رجسٹرار SECP طاہر سیف الدین صاحب سے سر آپ اسٹیج پر تشریف لائیں. پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کریں گے. تلاوت قرآن پاک کے لیے میں حافظ زید صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين.
سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. ترجمہ: اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کی نسبت یہ نہ کہنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے لیکن تم نہیں جانتے. اور ہم کسی قدر خوف، بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے تو صبر کرنے والوں کو خدا کی خوشنودی کی بشارت سنا دو. ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم خدا ہی کا مال ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی، رحمت اور یہی سیدھے راستے پر ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ پاک جو کلام پاک پڑھا گیا ہے اس کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما لیجیے اور اس کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیۃً تحفۃً پہنچا دیجیے. یا اللہ اس کلام پاک کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور مرسلین کو پہنچا دیجیے. یا اللہ اس کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
اہل خاندان کو بھی پہنچا دیجیے۔ یا اللہ اس کلام پاک کا ثواب تمام صحابیات، تمام اولیاء کرام، تمام اماموں کو پہنچا دیجیے۔ یا اللہ اس کلام پاک کا ثواب جتنے مسلمان گزر چکے ہیں، جو آنے والے ہیں، ان کی خدمت اس میں پہنچا دیجیے۔ اور یا اللہ اس کلام پاک کا ثواب اکھدری یعنی صاحب جنرل سیکرٹری لاہور ٹیکس بار کے سسر قضائے الہی سے وفات پا گئے ہیں، ان کو اس کا ثواب پہنچا دیجیے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجیے۔ اور یا اللہ اس کلام پاک کا ثواب جو سیلاب ہمارے ادھر آیا ہوا ہے اور جو لوگ شہید ہو گئے ہیں، جب ان میں ڈوب گئے ہیں، یا اللہ ان کو بھی اس کا ان کا ثواب پہنچا دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو۔ اب نعت رسول مقبول کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا منیر عبدالعزیز صاحب سے کہ وہ ڈائز پر تشریف لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حسن روی اچھی لگی نا، سروری اچھی لگی، حسن روی اچھی لگی نا، سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا، سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا، سروری اچھی لگی، دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی، بے کیف تھی، دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی، بے کیف تھی، دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی، بے کیف تھی، ان کے کوچے میں گئے تو، ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا، سروری اچھی لگی، میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی، مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی،
خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، رکھ دیے سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر، رکھ دیے سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر، رکھ دیے سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر، سرور کون و مکاں کی، سرور کون و مکاں کی سادگی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی، آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی، آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی، عاشقان مصطفیٰ کو، عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ اب ویلکم ایڈریس کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا ایکٹنگ پریزیڈنٹ لاہور ٹیکس بار ایسوسی ایشن کامران خلیل کمبو صاحب کو کہ وہ ڈائز پر تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ The Honorable Chief Guest, Mr. Muzaffar Ahmad Mirza Sahab, Commissioner Licensing and Registration Division, LRD, SECP, Honorable Guest, Mr. Shehbaz Sarwar Sahab, Registrar Company Registration Office Lahore, SECP, Honorable Speaker, Mr. Asif Muzaffar Sheikh Sahab, my senior former President, LTBA and former President, PTBA, Naeem Shah Sahab, and all other guests from the SECP, and all these participants, my friends, colleagues, and females. We welcome all you here for today's seminar that is on the topic Enhancing Business Registration and Introduction to Financial Institution FIE Portal. I want to say here, first of all, I want to tell about the good words for Chief Guest, Mr. Muzaffar Mirza. He is currently serving as a Commissioner of Securities and Exchange, Commission of Pakistan. Mr. Mirza was previously serving as Chief Prosecutor, Executive Director at the SECP. Since joining the Commission in July 2012, he has led the Law Division and played a central role in the Commission's legal and enforcement functions. He has been
instrumental in shaping Pakistan's corporate and financial regulatory framework. His key contributions include leading work on several landmark legislative reforms, including the Companies Act 2017, Securities Act 2015, Future Market Act 2016, the Corporate Restructuring Companies Act 2016, and the Corporate Rehabilitation Act 2018, etc., so on. उसको रिड्यूस करके 28 किया गया, सिंप्लीफाई किया गया। एप्लीकेशन जो बहुत सारी थी उनको सिंप्लीफाई करके रिड्यूस किया गया ताकि आपकी फैसिलिटेशन में और उसकी फाइलिंग में इजी और उसमें आसानी पैदा हो सके। इसके अलावा जो सबसे बड़ा स्टेप जो एसईसीसी ने लिया है कि आप जब एक दफ़ा कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं उसके बाद आपको मुख्य डिपार्टमेंट के साथ सेपरेटली जाकर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ती है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एसईसीसी हैज integrated with these organizations. This is around 16 organizations like Employee Social Security, FBR, PESI, SESI और CBC वगैरह के साथ जो है इंटीग्रेशन हो गई है। एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपने कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है और जब वंस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड वो डाटा पुश हो जाएगा उन डिपार्टमेंट्स के पास और ऑटोमेटिकली आपकी एनटीएन इशू हो गया है, यूबीआई की सर्टिफिकेशन मिल गई है, सोशल सिक्योरिटी की सर्टिफिकेशन, वो तमाम प्रोसेस जो है वो डिजिटली सारे अप्रूव हो जाते हैं। ड्यू टू दीज फैसिलिटेटिव मेजर्स और जो सारी इनोवेशन है डिजिटली, उसका रिजल्ट ये हुआ है कि आपकी आज जो पोर्टफोलियो है, जो कंपनी की पॉपुलेशन है, वो ओवर द 5 ईयर 80% इंक्रीज होकर 2,62,000 से ऊपर जा चुकी है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर दैट इज 24-25 में हाईएस्ट एवर नंबर ऑफ कंपनीज दैट इज 35,000 वर रजिस्टर्ड इन अ सिंगल ईयर। इसके अलावा जनवरी में 3,442 का रिकॉर्ड एसईसीसी ने ब्रेक किया कि आज तक इतनी कंपनियां पहले नहीं बनी एक महीने के अंदर। वो रिकॉर्ड फिर मई में फिर तोड़ा गया, 3,605 कंपनीज बनी और जुलाई में for the first time over 4,000 companies were registered in a single month. इसके अलावा जो आपकी जो सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन प्रोसेसिंग है वो हमारी 99.9% है और डेली जो इनकॉर्पोरेशन है वो अराउंड 160 to 180 कंपनीज आर बीइंग रजिस्टर्ड ऑन डेली बेसिस और जो एवरी टाइम और लेस देन 4 आवर्स हैं विद नो फुटफॉल। ऑल द इनकॉर्पोरेशन आर बीइंग डन डिजिटली। Now we come to the next point कि अब एक स्टेज आ गई है कि जब हम आज से पहले हम 1 लाख कंपनी पे खड़े थे, ओवर द 5 years हम 262,000 पे जाते हैं। इफ वी कंपेयर दिस पॉपुलेशन विद अदर जुरिस्डिक्शन तो हम काफ़ी लो पे हैं। अगर आप इंडिया में चले जाएं तो मिलियंस में हैं, यूके में देखें तो मिलियंस में कंपनीज हैं, तो वी आर स्टिल राउंडिंग अराउंड 262,000। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसमें हमें आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग जो टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं, जो कंसल्टेंट्स हैं, जो रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट्स हैं, उनको हम रिक्वेस्ट ये करते हैं कि आप अपने क्लाइंट्स जो आपके पास आते हैं उनको आप इंड्यूस करें कि आप कॉर्पोरेट कल्चर की तरफ आएँ। सबसे पहले आप उनसे ये पूछें कि व्हाट आर योर गोल्स, कि आप स्टेडी इनकम चाहते हैं या लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन चाहते हैं। गोल डिटरमिन करवाएं उनका, फिर उनको बताएं कि बिजनेस स्ट्रक्चर कौन से अवेलेबल हैं, आइदर इट इज कंपनी स्टेटस, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, व्हाट आर द डिफरेंसेस, व्हाट आर द बेनिफिट्स फॉर फॉर्मिंग अ कंपनी, व्हाट आर द चैलेंजेस विद सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। देन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस आपकी कौन सी होनी चाहिए, किस सेक्टर में ग्रोथ के चांसेस ज्यादा हैं, कहाँ पे ज्यादा एडवांटेजेस आपको हैं, आप उनको गाइड कर सकते हैं। लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट है कि अगर आपका बिजनेस खत्म भी हो जाता है तो योर पर्सनल एसेट्स आर सिक्योर्ड, अनलाइक जैसे आपके सिंगल मेंबर सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में आपके पर्सनल एसेट्स भी आर लाइबल फॉर दी फुलफिलिंग द लाइबिलिटीज। टैक्स इम्प्लीकेशंस में आप बता सकते हैं कि टैक्स रिबेट जो अवेलेबल हैं, टैक्स एडवांटेजेस जो हैं वो क्या कंपनी के लिए अवेलेबल है।
फंड रेजिंग में आपको कंपनी बनाने में आपके लिए क्या बेनिफिट्स हैं, आपको कितना सेव है और कितना जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उनको कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जो कंपनीज हैं जो कॉर्पोरेट कल्चर में है उनके ऊपर कितना बड़ा कॉन्फिडेंस है कि आपको फंड रेज करना आसान हो जाता है। रिसेंटली कमिश्नर साहब ने अभी तमाम मिनिस्ट्रीज को लेटर भी लिखे हैं कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर अवार्ड हों कोशिश की जाए कि वो सिर्फ कॉर्पोरेट कल्चर में जो कंपनी बनी है उसी को दिया जाए, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप को डिस्करेज किया जाए। These are the major sectors which have already been this single member company है, प्राइवेट कंपनीज हैं, पब्लिक कंपनीज हैं, फॉरेन कंपनीज, लाइसेंस कंपनीज के अभी डिस्कशन हो रही थी कि लाइसेंस कंपनी पाकिस्तान में बहुत कम है, तो लाइसेंस कंपनीज जितनी ज़्यादा ग्रो करेगी उतनी आपकी डॉक्यूमेंट इकोनॉमी, आपकी जो इकोनॉमी में स्केलेबिलिटी आएगी वो ज़्यादा आएगी इसमें। एक और जो कॉन्सेप्ट है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप विद दी practices of partnership with limited liability feature, ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट दुनिया में बड़ा ये सक्सेसफुल कॉन्सेप्ट है, इसको यहाँ पे थोड़ा सा प्रमोट करने की जरूरत है। व्हाट आर द बेनिफिट्स, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो कंपनी होती है इसकी शेयर होल्डर आर टू डिफरेंट, दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, और जो कंपनी है इट कैन ओन प्रॉपर्टीज, it can execute contracts, it can sue or can be sued at its own name, डॉक्यूमेंट इकोनॉमी होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर कि यू आर लाइबल ओनली टू दी एक्सटेंट ऑफ योर कैपिटल, और अगर इससे ज़्यादा है तो आप उस पर सेव है, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टीज जो हैं वो आर नॉट लाइबल, अनलाइक के जैसे पार्टनरशिप में आपकी पर्सनल प्रॉपर्टीज भी आ जाती है। परपेचुअल सक्सेशन है, जैसे पार्टनरशिप में अगर कोई बंदा अगर रिजाइन कर जाए, फौत हो जाए तो उसकी चैलेंजेस होते हैं, उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करने की जरूरत होती है, नई पार्टनरशिप है, इसमें सिंपल ट्रांसफर ऑफ शेयर के थ्रू मैनेजमेंट चेंज हो जाती है। स्केलेबिलिटी है, आप आज प्राइवेट कंपनीज हैं, आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है, यू कैन बिकम पब्लिक कंपनी एंड इनवाइट डिपॉजिट्स एंड कैपिटल फ्रॉम अदर पब्लिक। इसी तरह आप फंड इजीली रेज कर सकते हैं, विच हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड प्रीवियस टाइम। कुछ स्टार्टअप्स के लिए, नई कंपनीज के लिए, स्मॉल बिजनेस के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बड़ी रिलैक्स की गई है कंपनीज एक्ट 2017 में। अगर आपकी कोई प्राइवेट कंपनी एंड इट्स पेड अप कैपिटल इज लेस देन और इक्वल टू 1 million, देयर इज नो नीड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर। Similarly, if the private company has paid up capital of less than 10 million, company is not required to file any financial statement with the regulator. Small companies are not required to appoint company secretary. Only public companies are required to appoint company secretary. Similarly, if your capital is less than 7.5 million, you are not required to appoint legal advisor. Similarly, single member companies or private companies having paid up capital up to 3 million, अगर उनकी कोई चेंज नहीं उनके पर्टिकुलर्स में फ्रॉम द लास्ट फॉर्म एनुअल रिटर्न, तो उनको हर साल एनुअल रिटर्न भी फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो आपकी फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स है, कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट है फॉर द स्मॉल कंपनीज, वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। तो जो एक कहते थे कि ओवर रेगुलेटेड है या आपको बहुत ज़्यादा उसमें रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है, वो काफ़ी हद तक स्मॉल कंपनीज के लिए रिड्यूस कर दी गई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए एसईसी में ऑलरेडी एक नया ऑनलाइन पोर्टल इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें ऑलमोस्ट हमारे 90-95% प्रोसेसेस डिजिटाइज हो चुके हैं। प्रीवियसली ई सर्विस पे बहुत सारे जो प्रोसेसेस थे वो हमारे डिजिटाइज भी नहीं थे और एंड टू एंड डिजिटाइज भी नहीं थे, मतलब आप फाइलिंग ऑनलाइन करते थे, उसकी आउटपुट आपका मैनुअल थी। अब इजी फाइल में आपकी तमाम जो आपकी जो डीलिंग है वो एंड टू एंड डिजिटाइज है। इंटीग्रेशन होगी एफबीआर के साथ, नादरा के साथ, ईओबीआई के साथ, और सबसे इम्पोर्टेंट जब भी न्यू कंपनी बनती है तो उसके शेयर बुक एंट्री फॉर्म में सीडीसी में रजिस्टर भी हो जाते हैं। इसके अलावा बिजनेस सेंटर और हेल्प डेस्क हमने बनाए हुए हैं, गाइडलाइंस बनाई हुई हैं, व्हाट्सएप और वी चैट, ये तमाम चीज़ें। इसके अलावा वीडियोस हर प्रोसेस की बनी हुई हैं, वो हमारी वेबसाइट पे मौजूद हैं, जिसको आप उस वीडियोस को रिव्यू करके आप फाइलिंग कर सकते हैं अपने। QR कोडेड गाइड्स हैं, सैंपल डॉक्यूमेंटेशन, सैंपल मेमोरेंडम, ईच एंड एवरीथिंग is available on the website for the facilitation of the stakeholders.
Now we come to the next point. जैसे मैंने आपसे कहा था कि SCCP is always keen to have digitalization in its processes. तो एक जो important financial institution portal हमने बनाया था, it was firstly launched in 2021 for the banks and financial institutions. इसका पर्पस ये था कि जब भी किसी कंपनी ने अकाउंट ओपन करना था तो उसको पहले सर्टिफाइड कॉपीज लेनी है और फिर वो जाके कंपनी बैंक में जाके वो सर्टिफाइड कॉपीज देता था और पहले वो कॉपीज लेने का 1-2 दिन का टाइम, फिर बैंक को पहुंचाना और फिर बैंक उस पर ड्यू डिलिजेंस करता था और अकाउंट ओपन करने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता था। तो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पोर्टल बनाया गया बैंक्स के लिए कि बैंक्स इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर सर्टिफाइड कॉपीज वो उस पोर्टल पे जाके किसी कंपनी के डाटा को कॉल करके वो वेरिफिकेशन कर सकता था कि इसकी प्रोफाइल क्या है, ये कंपनी का स्टेटस क्या है, इसका सेक्टर क्या है, इसका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, इसकी डायरेक्टरशिप क्या है, इसकी शेयर होल्डिंग पोजीशन क्या है। और ओरिजिनल फॉर्म्स जो वो सर्टिफाइड कॉपी लेता था वो उसको डाउनलोड करके डायरेक्ट फ्रॉम द डेटाबेस ऑफ SCCP वो अपनी ड्यू डिलिजेंस कंप्लीट कर सकता था। इसका बेनिफिट क्या हुआ कि आपका टर्न अराउंड टाइम रिड्यूस हो गया, सिग्निफिकेंट टर्न रिड्यूस हो गया कि आप इंस्टेंटली बैंक जो है किसी भी कंपनी की जैसी एप्लीकेशन आई उसने FI पोर्टल में लॉगिन किया, कंपनी का डाटा कॉल किया और सारी ड्यू डिलिजेंस कर ली उसने। रियल टाइम एक्सेस अपडेटेड रिकॉर्ड का मिल गया उसको, डायरेक्टर शेयर होल्डिंग की इंफॉर्मेशन आपकी जो अप टू डेट इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल है, कंप्लीट प्रोफाइल ईच एंड एवरीथिंग उसमें अवेलेबल है, उसको किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल जो मैंने ऑलरेडी पहले आपसे डिस्कस की है, कंपनी का नाम, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्टर ऑफिस एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कंपनी किस काइंड की प्राइवेट या पब्लिक है, उसका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या है, उसका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, अथॉराइज कैपिटल, पेड अप कैपिटल, उसके मेमोरेंडम आर्टिकल और इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स की डायरेक्ट एक्सेस, शेयर होल्डिंग डिटेल, ये तमाम इंफॉर्मेशन उसके अंदर अवेलेबल है। इसका रिजल्ट आज तक क्या रहा बैंक का, आप देखें कि सिंस लॉन्च फ्रॉम 2021 to 2025 टोटल नंबर ऑफ सर्चेज वाज ओवर 250,000, 2.5 लाख से ज्यादा सर्चेज की गई है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। 51 बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसको यूज कर रहे हैं और नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो सर्च किए गए हैं इन 250,000 सर्चेज में डेट वाज 1.5 मिलियन, ओवर 1.5 मिलियन। इतना ये सक्सेसफुल ये प्रोसेस रहा है कि ये वहाँ से सारी ड्यू डिलिजेंस उनकी तमाम अकाउंट ओपनिंग वहाँ से हो रही है। ये छोटी सी स्टैटिस्टिक्स है कि कौन कौन से बैंकों ने सर्चेज की हैं। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा ने सबसे हाईएस्ट 53,000 सर्चेज की हैं और पैसल बैंक ने 35,000 है। तो ये इस सक्सेस को देखते हुए कमीशन ने डिसाइड किया कि इसकी एक्सेस को रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट, क्योंकि वो रजिस्टर्ड होते हैं SCCP के साथ, वो लाइसेंस लेते हैं अपने काम करने का, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो सबसे पहले उनको इसकी फैसिलिटी दी जाए ताकि वो इस फैसिलिटी से फायदा उठा के अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें और डिजिटलाइजेशन को वो प्रमोट कर सकें। तो अभी रिसेंटली जब कमीशन ने रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट्स को ऑनबोर्ड करने का फैसला किया है तो हमने टेक्निकल उसके अंदर एडजस्टमेंट की है और ताकि रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट भी उसको प्रीपेड मॉडल पे उसको यूज कर सकें। तो उसका तरीका बड़ा आसान है कि एक आपने यूजर क्रिएशन फॉर्म लेना है जो कि हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, एक अथॉरिटी लेनी है, अथॉरिटी लेटर देना है आपने। अगर आप रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट एज अ बॉडी कॉर्पोरेटिव कंपनी की स्टेटस में है तो आप किसी अपने एक पार्टनर को या अपने एम्प्लॉय को अथॉराइज करेंगे जो ये रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट पोर्टल को यूज कर सकेगा। और एक छोटा सा एग्रीमेंट है SCCP के साथ, वो आपने करना है। ये तीनों चीजें आपने online.portal@sccp.gov.pk पे सबमिट कर देना है। इन डॉक्यूमेंट की बेस पे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड आपके जो रजिस्टर्ड आपके मोबाइल नंबर है और आपका ईमेल एड्रेस है उस पर आपके पास चला जाएगा। इस रजिस्टर्ड इसको यूज करने का फीस जो है, अगर आप मॉर्गेज रजिस्टर को देखते हैं तो उसकी सिर्फ 3,000 है फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज फॉर द सेम कंपनी। यानी एक कंपनी का मॉर्गेज रजिस्टर अगर उसने 100 चार्जेस रजिस्टर करवाए हुए हैं वो 90 डेज तक आप 3,000 पे करके आप उसकी ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं, उसकी रिपोर्ट बना सकते हैं, उस पर जो आपने
उस पर ड्यू डिलिजेंस करनी है वो कर सकते हैं, और वो 90 डेज की रहेगा। कमीशन ये पहले जब लॉन्च किया गया था इसकी फीस 15,000 थी। कमीशन ने अभी रिसेंटली इसकी फीस को 15,000 से कम करके 3,000 कर दी है। पहले इसकी एक्सेसिबिलिटी पीरियड 30 डेज था, कमीशन ने इसको बढ़ा के 90 डेज तक कर दिया है। अगर आप अभी ऑनलाइन अगर किसी कंपनी की आप इंस्पेक्शन करने जाएंगे तो आप आज करने जाएंगे, आपको एक दफ़ा पेमेंट करनी पड़ जाएगी। अगर आपकी कंप्लीट नहीं होती या आपको दोबारा करना पड़ती है किसी वजह से, तो आपको दोबारा पेमेंट करनी पड़ेगी, फिर दोबारा जाना पड़ेगा, फिर दोबारा करनी पड़ेगी। यहाँ पे 90 डेज के लिए आपके पास वो पोर्टल अवेलेबल है विदाउट एनी फर्दर फीस, आप अपनी ड्यू डिलिजेंस कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरह कंपनी प्रोफाइल और डॉक्यूमेंट्स देखने की फीस जो है वो 1100 फॉर प्राइवेट कंपनी है, और वो पब्लिक कंपनी के लिए 2000 है। ये आपके लिए अवेलेबल होती है फॉर 1 आवर। आप उस कंपनी को 1 घंटे में जितनी दफ़ा मर्जी आप उसको आप रिव्यू कर सकते हैं। और नीचे ये अकाउंट दिया गया कि वंस आपके पास अगर यूज़र आईडी पासवर्ड आ गया है, आपने फीस सबमिट कर दी है, तो फीस सबमिट करने के बाद आप इस account.svb.gv.pk शेयर पे जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास लैंडिंग पेज आ जाएगा। आप यूज़र आईडी पासवर्ड डालें और आप अपनी ड्यू डिलिजेंस या आप अपनी इंस्पेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। चलान जमा कराने का ये मैंने लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को आप क्लिक करके आप चलान जमा करवा दें, और चलान जमा करा के हमारी ऑनलाइन उस ईमेल पे भेज दें। आपके वॉलेट में वो पैसे सबमिट हो जाएंगे, और उसके बाद आप अपनी वो ड्यू डिलिजेंस या अपनी इंस्पेक्शन को आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप मॉर्गेज चेक करेंगे तो अपनी फीस उधर से कटती जाएगी। अगर आप कंपनी के प्रोफाइल देखेंगे तो उसके मुताबिक उसकी फीस आपके उस वॉलेट में से पैसे डिडक्ट होते जाएंगे। एक छोटा सा वॉक थ्रू मैं आपको करवा देता हूँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पोर्टल का। जब आपने आपको जो वो एड्रेस दिया गया था उसको आपने क्लिक किया तो आपने यूज़र आईडी पासवर्ड आपके पास आ गया। आप अपना यूज़र आईडी पासवर्ड जो आपको रिसीव हुआ है आप उसको डालेंगे। आप लॉगिन का बटन क्लिक करेंगे तो आपके जो मोबाइल आपने रजिस्टर्ड मोबाइल है उसमें आपका OTP आएगा। ये सिक्योरिटी फीचर डाला गया है ताकि कोई इसको मिस यूज़ ना कर सके और आपके पास ही इसकी एक्सेस रहे। आप उस OTP को एंटर करके वेरीफाई करेंगे तो आप पोर्टल के मेन पेज पे आ जाइए। यहाँ पे आपके पास ऊपर टॉप पे मेन्यू बार है जिसपे एक कंपनी सर्च है, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है, कॉन्टैक्ट अस है, चेंज पासवर्ड और यूज़र गाइड। ये यूज़र गाइड आपके पास स्टेप टू स्टेप ऑलरेडी अवेलेबल होगी, आप उसको खोल के भी उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये ब्रैकेट में आप रेड लाइन में देखा हुआ है, यहाँ पे जितने आपने पैसे जमा करवाए होंगे जो वॉलेट में आपके पैसे होंगे नजर आ रहे होंगे। द करंट बैलेंस एसोसिएटेड विद यू योर एंटिटी इज 38,700। यानी जितने पैसे आपने जमा करवाए हुए हैं जब भी आप इसे खोलेंगे जितना बैलेंस आपका बकाया रहता होगा वो आपको बताता जाएगा कि इतना बैलेंस है। लेकिन अगर आपका बैलेंस शॉर्ट हो गया किसी भी सर्विसेज को यूज करने के लिए तो आपको अलर्ट मैसेज आ जाएगा कि आपका बैलेंस शॉर्ट है, आप उसको रिचार्ज करवाएं। जब आपके पास बैलेंस अवेलेबल होगा सिंपल आपके पास ऑप्शन है कि आप इनकॉर्पोरेशन नंबर या कंपनी नेम डाल के किसी भी कंपनी को सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अख्तर टेक्सटाइल का नाम डाला तो अख्तर टेक्सटाइल कंपनी आ गई, उसका इनकॉर्पोरेशन नंबर, उसकी इनकॉर्पोरेशन डेट, उसका स्टेटस कि ये एक्टिव है या इनएक्टिव है, वो सारे स्टेटस इसके आ जाते हैं कि CRO में ये रजिस्टर्ड है। उसके बाद यहाँ पे ये दो आपके पास आइटम है, ये है व्यू डॉक्यूमेंट्स, ये प्रोफाइल देखने के लिए और ये मॉर्गेज रजिस्टर के लिए। अगर व्यू डॉक्यूमेंट आप देखेंगे तो इसकी फीस 1100 फॉर प्राइवेट कंपनीज और 2000 फॉर पब्लिक कंपनीज है। और अगर आप मॉर्गेज देखेंगे तो इसकी फीस 3000 लेकिन सेपरेट फीस है। तो इसको आपने बड़ा सोच समझ के यूज करना है कि वंस आपने इसको क्लिक कर दिया तो आपके वॉलेट से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब है कि आपने उसको रिव्यू शुरू कर दिया। जैसे हम व्यू डॉक्यूमेंट को अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास कंपनी के डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएंगे। आप प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, आप सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देख सकते हैं, आपकी इनकॉर्पोरेशन की एप्लीकेशन को आप रिव्यू कर सकते हैं, मेमोरेंडम आर्टिकल व्यू कर सकते हैं और लेटेस्ट रिकॉर्डिंग फॉर्म A और 9 आपके पास अवेलेबल है। इसको आप व्यू भी कर सकते हैं, इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये आपका अपने डेस्कटॉप पे आप इसको डाउनलोड भी करके इसको रख सकते हैं। अगर आप प्रोफाइल को देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास कंप्लीट पिक्चर कंपनी की मौजूद है। कंपनी का नाम, एड्रेस, इनकॉर्पोरेशन डेट, इनकॉर्पोरेशन नंबर, उसका कैपिटल स्ट्रक्चर, उसका किस प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस उसकी क्या है, उसका चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है, कंपनी सेक्रेटरी कौन है, उनके पर्टिकुलर CNIC नंबर, अपॉइंटमेंट डेट। सिमिलरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पूरा मौजूद है, उसका नाम, CNIC नंबर, उसकी नेशनैलिटी, अपॉइंटमेंट डेट एंड एड्रेस। इसी तरह
ऑडिटर की इंफॉर्मेशन और शेयर होल्डिंग की पोजीशन, कितनी शेयर होल्डिंग है, कौन कौन से शेयर होल्डर्स हैं, उनके एड्रेसेस, तमाम प्रोफाइल इसके अंदर अवेलेबल होगी। ये आपके यहाँ पे पहला हमारा जो व्यू कंपनी रिकॉर्ड वाला पोर्शन यहाँ पे खत्म हो जाता है। आप प्रोफाइल इसकी रिव्यू भी कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो पीछे यहाँ पे आपको दिखाए गए थे। जो इसका सेकंड पार्ट है मॉर्गेज रजिस्टर, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि रिसेंटली हमने नवंबर 2024 में लॉन्च किया है। और मोस्टली जो हमारी इंस्पेक्शन होती है वो मॉर्गेज की सर्च रिपोर्ट बनाने में लगती है लोगों की। तो वो जो आपने ऑफिस जाके देखी है, वो आप इस पोर्टल को यूज करके अप टू डेट इंफॉर्मेशन आप मॉर्गेज की पूरी पोजीशन, बनी बनाई रिपोर्ट, टेलर मेड रिपोर्ट आपको मिल सकती है, तमाम चार्जेस की भी, आउटस्टैंडिंग चार्जेस की भी। नवंबर 5 2024 में लॉन्च किया गया। इससे क्या ट्रांजैक्शन टाइम आपका कम हो गया है, कॉस्ट कम हो गई है, वेरिफिकेशन प्रोसेस आपका बिल्कुल स्पीड अप हो गया है, टर्न अराउंड टाइम खत्म हो गया है, एक्चुअल फॉर्म्स तक आपकी रसाई हो गई है। और पीरियड जो आपके पास कंटिन्यूड एक्सेस है, दैट इज फॉर 90 डेज। ये मेन फीचर है इसके। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पोर्टल के अंदर ही कंपनी रिकॉर्ड के साथ आपके पास मॉर्गेज का बटन जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था, वहां पे आप व्यू कंपनी, व्यू में मॉर्गेज रजिस्टर को देखेंगे और वहां व्यू मॉर्गेज रजिस्टर में जब जाएंगे तो आप डेट वाइज रिपोर्ट भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बैंक वाइज भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सिक्योरिटी वाइज भी कर सकते हैं। और इसके अलावा एक फर्दर फीचर है कि अगर आप तमाम चार्जेस देखना चाहते हैं तो वो रिपोर्ट भी एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आउटस्टैंडिंग जो कि अभी पेंडिंग है, जो सर्टिफाइड है, उनको निकाल के वो रिपोर्ट भी आपको वो ये सिस्टम एक्सट्रैक्ट करके देख सकता है। इसका एक छोटा सा वॉक थ्रू मैं करवा देता हूँ। सिमिलरली आपने यूजर आईडी पासवर्ड जैसे पहले बताया था वो देंगे, ओटीपी देंगे। ओटीपी देने के बाद आप कंपनी सर्च करेंगे। जब कंपनी सर्च करेंगे तो आपने पहले व्यू का डॉक्यूमेंट को देखा था, अब आपने व्यू मॉर्गेज के बटन को क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास उस कंपनी की मॉर्गेज की तमाम इंफॉर्मेशन आ जाएगी। उसमें कैटेगरी है कि आप ऑल चार्जेस देखना चाहते हैं या आउटस्टैंडिंग चार्जेस देखना चाहते हैं। आप अपने उसकी जो भी आपकी डिजायर्ड रिक्वायरमेंट है, आप उस बटन को क्लिक करें। उसके बाद आप ये देखेंगे, अगर आप डेट वाइज चाहते हैं तो आप डेट वाइज सेलेक्ट कर लें। अगर आप बैंक वाइज इंफॉर्मेशन चाहते हैं तमाम चार्जेस की, या जॉइंट पारी पासबुक जहाँ पे मल्टीपल बैंक इन्वॉल्व है, वो रिपोर्ट आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या सिक्योरिटी वाइज कर सकते हैं। और ये चारों को भी इकट्ठा आप निकाल सकते हैं, ये सारी रिपोर्ट भी एक्सट्रैक्ट हो सकती है। तो जब आप इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पे प्रोफाइल के साथ आपके पास ये रिपोर्ट खुल जाएगी, समरी ऑफ चार्जेस। इसमें तमाम चार्जेस आ रहे होंगे कि ये कब क्रिएट हुआ, किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू क्रिएट हुआ, ये रजिस्टर कब हुआ, इस चार्ज की अमाउंट कितनी थी, कौन सी प्रॉपर्टी मॉर्गेज की गई थी, टर्म्स एंड कंडीशन की जिस्ट क्या थी, और सबसे इंपॉर्टेंट ये जो हमने सर्कल किए हुए फॉर्म 10, ये एक्चुअल ओरिजिनल फॉर्म है जिसकी स्कैन कॉपी को अगर आप क्लिक करेंगे तो आप इस फॉर्म को, एक्चुअल फॉर्म को भी व्यू कर सकते हैं। अटैचमेंट्स को करेंगे तो आप उसके साथ जो इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, लेटर ऑफ आइडेंटिफिकेशन या मेमोरेंडम डिपॉजिट टाइटल डीड या जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, आप एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट को रिव्यू कर सकते हैं। सर्टिफिकेट जो उसके अगेंस्ट चार्ज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है या मॉडिफिकेशन का या सेटिस्फेक्शन की जो आपने एक्नॉलेजमेंट इशू की हुई है रजिस्ट्रार ने, उस ओरिजिनल आप उसको रिव्यू कर सकते हैं। और इवन इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं आप अपने डेस्कटॉप पे। इसके अलावा एक और ऑप्शन इसमें ये, एक तो आप उसको रिव्यू विंडो में कर सकते हैं, ऊपर एक ऑप्शन दीजिए है जनरेट पीडीएफ। जब आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ फॉर्म में पूरी आपके पास मॉर्गेज की रिपोर्ट बन जाएगी पूरे। अगर आपने ऑल चार्जेस की निकाली हुई है तो डेट वाइज पूरी रिपोर्ट आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट में आ जाएगी। आप उसको सेव करने अपने डेस्कटॉप पे आप उसकी ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं। और इसमें भी ये जो आपके फॉर्म 10 ये जो ब्लू कलर में लिखे हुए हैं, ये अगर आप इवन डेस्कटॉप पे भी अगर सेव कर लें तो आप इसको क्लिक करेंगे तो ओरिजिनल फॉर्म 90 डेज तक आपके पास अवेलेबल होंगे। आप एक्चुअल फॉर्म को भी एक्सेस कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है कि अगर आप इंस्पेक्शन करने जाते हैं तो आप 1 या 2 या 3 फॉर्म के कॉपी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब आप एक्सेस करेंगे फॉर द पीरियड ऑफ 90 डेज आप तमाम चार्जेस, 50 चार्जेस हैं, उन तमाम चार्जेस के एक्चुअल फॉर्म्स को रिव्यू कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा इसमें फीचर दिया गया है। ये देखिए इस तरह तरतीब वाइज डेट वाइज आ रहे हैं, ये बैंक वाइज रिपोर्ट आ गई है, मतलब ये तरतीब में डेट वाइज आएगी, बैंक वाइज आएगी, और अगर आपने जो जो आपने ऑप्शन सेलेक्ट की जाएगी उसके मुताबिक इंफॉर्मेशन आ रही है। और ये सेगमेंट में होगी,
अगर पहले कॉलम में आपका 4 रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन है, अगर उसके बाद वो मॉडिफाई हुआ तो फॉर्म 16 पहली मॉडिफिकेशन आएगी, फिर उसके बाद सेकंड मॉडिफिकेशन आएगी, फिर थर्ड मॉडिफिकेशन आएगी, और अगर वो सेटिस्फाई हो गया तो उसके नीचे सर्टिफिकेशन पूरी एक बकेट बनी होगी जिसके अंदर आपको कंप्लीट एंड टू एंड इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, आपको ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा उस इंफॉर्मेशन को। ये सिक्योरिटी वाइज है। इसके अलावा जो नेक्स्ट आपके जो मेन्यू बार में इंफॉर्मेशन है वो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में आप अपनी डेट रेंज देख के आप खुद चेक कर सकते हैं कि आपने इस की टेक्निकल टीम को इशू चला जाएगा, वो रिजॉल्व हो जाएगा और आप बड़ा इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। सिमिलरली फर्स्ट टाइम आपके पास जब पासवर्ड आया तो एडवाइजेबल है कि आप फौरन जाके अपना ओल्ड पासवर्ड डाल के न्यू पासवर्ड अपनी मर्जी का आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा यूजर गाइड आपकी अवेलेबल है, स्टेप टू स्टेप और पिक्चोरियल तमाम गाइड आपकी अवेलेबल है, हर स्टेप पे क्या करना है वो तमाम अवेलेबल है। तो ये हमारा जो नया पोर्टल है उसके बारे में एक थोड़ा सा वॉक थ्रू हमने करवाया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। मैं पैटर्न पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन राना मुनीर हुसैन साहब को सर आपको वेलकम करते हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा फॉर्मर प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन, फॉर्मर प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन नईम शाह साहब से कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्टिंग प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन सेक्रेटरी जनाब असद हनीफ साहब, जनाब इत्शाम दूजे साहब, जनाब जीशान ताहिर साहब, चीफ गेस्ट जनाब मुजफ्फर अहमद मिर्जा साहब, जनाब शहबाज सरवर साहब, रजिस्ट्रार SCCP आसिफ मुजफ्फर शेख साहब, और आज के स्पीकर जनाब जाहिद अतीक साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब फारूक मजीद साहब, राना काशिफ वलायत साहब, हाफिज जाहिद साहब, आज के स्पीकर जनाब आसिम मुजफ्फर साहब। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे लाहौर टैक्स बार और SCCP के बड़े कोऑर्डिनेट रिलेशंस जो हैं वो पिछले कई सालों से कायम हैं, और जब भी कोई नई चीज़ SCCP इंट्रोड्यूस करता है तो सबसे पहले ये हमारे लिए ऑनर है कि आप हमें आके उसका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। आज का ये पोर्टल जो जनाब SCCP ने बनाया है वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, और बड़ी खुशी की बात है कि ये पोर्टल बहुत ही इंशाल्लाह कामयाबी की तरफ जाएगा, क्योंकि इसमें इतनी आसानियाँ पैदा कर दी गई हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा वेस्टेज होती थी वक्त की, उसमें बचत हो जाएगी, और ये वजह बनेगी इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी कॉर्पोरेशंस की। और जैसे आसिम साहब ने बताया कि आफ्टर रजिस्ट्रेशन जो है वो एक कंपनी इंटीग्रेट हो जाएगी 18 डिपार्टमेंट के साथ, और बजाय इसके कि वो 18 डिपार्टमेंट के पास अपनी इंफॉर्मेशन दे, वो डिपार्टमेंट इसकी जो है वो इस पोर्टल के ज़रिए से टोटल इंफॉर्मेशन उनके पास आ जाएगी। इसी तरह जो है वो और फैसिलिटीज़ हैं इसमें, अकाउंट ओपनिंग के लिए बजाय इसके कि वो सर्टिफाइड कापीज़ ढूंढता रहे और उनका बनवाता रहे, ये सारी कापीज़ जो है वो बैंक डायरेक्टली SCCP के इस पोर्टल से वो उसको जनरेट कर सकेगा
اور لارج نمبر آف بینکس جو ہیں وہ اس کو یوز کر رہے ہیں اور اس سے بینیفٹ لے رہے ہیں. مارگیجز کے لیے جو اتنی 35 کاپیز کی ضرورت ہوتی تھی وہ تمام ڈاکومنٹ جو ہے وہ امیجیٹلی اس پورٹل سے جو ہے وہ لے سکیں گے. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ پورٹل جو ہے یہ آئندہ بزنس انٹرپرینر کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگا اور بہت زیادہ ٹائم سیونگ کا باعث بنے گا. اور اس بینیفٹ کو دیکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ کمپنیز انکارپوریٹ ہوں گی اور اس سے فائدہ مند فائدہ حاصل کر سکیں گی. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں جو ہے وہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں رجسٹرار ایس سی سی کی جناب شباز سرور صاحب کا اور ایس سی سی پی لاہور آفس کے تمام آفیسرس کا جو ہمیشہ اپنی پریزنس دیتے ہیں. اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں, یہ بہت محنت سے بنائی گئی ہیں اور ممبرز لاہور ٹیکس بار ان کو کنسیڈر کریں اور اس سے زیادہ بینیفٹ لینے کی کوشش کریں تاکہ جو ہے وہ بزنس بھی پروموٹ ہو سکے اور ٹائم کی سیونگ بھی ہو سکے اور یہ ایزی اور یوزر فرینڈلی جو ہے وہ یہ سارے پورٹل جو ہے وہ ہو سکے. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں ممبر لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن کا کہ آپ ان سب ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہیں اور اس سے بینیفٹ حاصل کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. جناب رانا منیر صاحب آپ بعد میں آئیں اور کی بندی کریں. بہت شکریہ. اقبال ہمیشہ لے کر. تھینک یو سو مچ سر. اب میں ریکویسٹ کروں گا پیٹرن پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن رانا منیر حسین صاحب سے کہ وہ ڈائٹ پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ نعیم شاہ صاحب نے سب کا ادا کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاسٹی آف ٹائم کی وجہ سے بجائے اس کی ریپیٹیشن کے ایک ایک کا نام لے کے دوبارہ میں ریپیٹ کروں. تو بہرحال یہ سنتے آئے تھے کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے, تو آج جو ہے وہ کنواں پیاسے کے پاس آئے. اور ہم جو ہے وہ ہمیشہ جاتے تھے ایس سی سی پی میں اور رجسٹرار آف جوائنٹ اسٹاک آفس ہوتا تھا. اور اگر میں بہت پیچھے لے جاؤں تو جب میں 1980 میں پریکٹس میں آیا تو ابھی جو بھی شیخ صاحب نے فرمایا کہ 4 گھنٹے میں کمپنی بن سکتی ہے, تو 4 ماہ میں تقریباً ایک کمپنی بنتی تھی. اور جس دن ہم کمپنی ہمارے چیمبر سے بنتی تھی تو ہم اس کو سیلیبریٹ کیا کرتے تھے کہ 4 ماہ کے بعد ایک ہم نے کمپنی بنانے میں کامیاب ہو گیا. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سارا کریڈٹ جو ہے وہ جو ایس سی سی پی کی نئی ٹیم ہے جس میں کمشنر صاحب ہیں, رجسٹرار صاحب ہیں, ان کے سارے ساتھی ہیں, یہ سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے. یہ سارے مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی دے, یہ ملک کے لیے اور زیادہ محنت کرے اور ملک کی ویلفیئر کے لیے کام کرے. کچھ باتیں جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ضروری ہیں وہ یہ ہے کہ ہم گزشتہ کوئی 15 سال سے ایک ریکویسٹ کر رہے ہیں ایس سی سی پی سے کہ یہ جو ہمارے فارم اے اور فارم 29 کی جو فائلنگ ڈیٹ ہے اس کو کائنڈلی 31 دسمبر کر دیا جائے. وہ اس کی بیک گراؤنڈ اس کی یہ ہے کہ انکم ٹیکس میں جو کمپنیز کی ریٹرن فائل ہوتی ہے اس کی لاسٹ ڈیٹ 31 دسمبر ہوتی ہے اور 31 دسمبر میں ہم اکاؤنٹس بناتے ہیں. جبکہ فارم اے اور فارم 29 کے ساتھ جب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آڈیٹڈ اکاؤنٹس اس کے ساتھ اٹیچ کریں. تو یہ جو 3 مہینے کا گیپ ہے سپتمبر ٹو 31 دسمبر جو ہے وہ ہمارے بھی ذہنوں میں اور ہمارے کلائنٹ کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ 31 دسمبر تک ٹائم ہوتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ آڈیٹڈ اکاؤنٹس جو ہیں وہ ہم اکتوبر میں فائل نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے ڈیفالٹ ہوتا ہے. تو اگر ہم اس کو اگر ہم 2 مہینے آگے لے جائیں
تو یہ میرا خیال میں یہ اس میں کوئی قواعد نہیں ہے. اور یہ میں جب بھی ہماری ملاقات ہوتی ہے شہباز سرور صاحب سے تو ہماری بہت زیادہ ایوریج جو ہے 1 مہینے میں 1 دفعہ ملاقات ہوتی ہے. تو میں ہمیشہ ہی ریپیٹ کرتا ہوں کہ کائنڈلی اس کے اوپر غور کریں. اس میں جو ضرور ہم نے لوگوں کو ڈیفالٹر بنانا ہے. ہمارا مقصد جب لوگوں کو کمپنیز کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے تو پھر یہ ایک فیسلٹی اور دے دی جائے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایس سی سی پی کے لیے بھی بہتر ہے, کلائنٹس کے لیے بھی بہتر ہے. دوسری بات جو ہے وہ ابھی شیخ صاحب نے فرمایا کہ ہماری جو ہے 16 آرگنائزیشن کے ساتھ انٹیگریشن ہے. تو اس انٹیگریشن کا ایک فائدہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ جب ہم ایس سی سی پی میں ڈائریکٹرز کو چینج کرتے ہیں, کوئی ڈائریکٹر ریزائن کر گیا, کسی کی ڈیتھ ہو گئی یا کچھ ہوا, تو وہاں جب وہ چینج ہو جاتا ہے لیکن جو ایف ڈی آر کا ریکارڈ ہے اس میں چینج نہیں ہوتا. جب ایٹ دا ٹائم وہ رجسٹریشن جو ہے وہ تو ریکارڈ سارا ادھر چلا گیا, این ٹی این بھی مل گیا, سب کچھ ہو گیا, بہت اچھی فیسلٹی ہے. تو اگر یہ ساتھ کے ساتھ جب فارم 29 ہم فائل کریں اس میں کوئی چینج ہو تو ایف ڈی آر کا ریکارڈ بھی اسی طریقے سے چینج ہو جائے اور اس میں ڈائریکٹر جو ہے وہ چینج ہو جائے, تو یہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے ایک فردر فیسلٹی جو ہے وہ مل جائے گی. تیسری بات جو ہے وہ آپ نے یہ فرمایا کہ آپ موٹیویٹ کریں اپنے کلائنٹس کو کہ وہ کارپوریٹ سیکٹر کی طرف آئیں اور پروپرائٹری کنسرن سے نکل کر پی او پی سے نکل کر آپ اس طرف آئیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی تجویز ہے اور ملک میں کارپوریٹ سیکٹر جو ہے اس کی نمو ہونی چاہیے اور اس کو لوگوں کو اس طرف آنا چاہیے. لیکن اس میں کچھ پرابلمز ہیں, وہ باقی جو اس کے فائدے ہیں وہ تو ہم سب کو بتاتے ہیں. میں نے تو اپنے آفس میں ایک چارٹ بنایا ہوا تھا کہ اس میں تینوں کا کمپیریزن کر کے کہ کمپنی کا کیا بینیفٹس ہیں, پارٹنرشپ کے کیا بینیفٹس ہیں اور اے او پی کے کیا بینیفٹس ہیں, اور تینوں پر کمپیریزن کر کے اس میں یہ بھی کہا تھا, بتایا ہوا تھا کہ ٹیکس کی کیلکولیشن جو ہے وہ کیا ہوتی ہے. یہ سب ہمارے دوستوں کو اس میں بنانا چاہیے اپنے اکاؤنٹ کو, اپنے جو کلائنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کہ وہ کیوں کمپنی کو چوز کریں, کیوں وہ کارپوریٹ سیکٹر میں ہے. تو یہ بات درست ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے کلائنٹس کو طرف لے کے آنا چاہیے. لیکن اس میں تھوڑا سا پرابلم کیا ہے کہ جو بزنس مین ہے اس کی سوچ جو ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. وہ سوچ یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے سب سے پہلے بتائیں کہ ٹیکس کا ایلیمنٹ کیا ہے. ٹیکس کا ایلیمنٹ یہ ہے کہ اگر میں انڈیویجول ہوں یا اگر میں پارٹنرشپ کنسرن ہوں تو مجھے پہلے تو بیسک ایگزمپشن جو ہے, جو بیسک تھریشولڈ ہولڈ ہے انکم کا, اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے. جبکہ کمپنی کی صورت میں ڈے 1 سے 1 روپیہ بھی میری انکم ہے تو اس پر بھی ٹیکس ہے, کوئی بیسک تھریشولڈ نہیں ہے. اسٹیٹس جو ہے اگر پروپرائٹری کنسرن ہے یا ای او پی ہے تو اس میں پروگریسو ریٹس آف ٹیکسز ہے, پہلے 10% ہے, 15% ہے, 20% ہے. جبکہ کمپنی کی صورت میں جو ہے وہ ایک فکس ریٹ آف ٹیکس ہے, اس لیے اس کی وجہ سے یہ ٹیکس بڑھ جاتا ہے. دوسری بات, تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اے او پی کی صورت میں یا انڈیویجول کی صورت میں جس کو ہم پروپرائٹری کنسرن کہتے ہیں, اس میں جو اس میں منافع کمایا گیا ہے وہ یا تو ان پارٹنرز کا ہے یا وہ اس شخص کا ہے جو مالک ہے. تو اس لیے وہ اس کو فریکوینٹلی اس سرمایے کو جب چاہے اپنے بزنس سے نکالے اور اس کو کہیں یوز کر لے, کوئی پراپرٹی بائی کر لے, کوئی شادی کروا دے کسی کی, یا کچھ بچوں کی شادی کر دے, باہر کے ٹرپ کر لے. لیکن کمپنی میں ایسا نہیں ہے. اگر کمپنی میں کوئی ڈائریکٹر جو ہے اس کو کمپنی لون دیتی ہے تو وہ اس کو ڈیویڈنڈ ڈکلیئر کر دیا جاتا. تو اس وجہ سے کہ اس میں جو ہے جو ڈائریکٹر ہے اس کے پاس جو یوز کرنے کے لیے جو رقم ہے وہ صرف وہ ہے جو وہ اس سے ریمونریشن مل رہا ہے ایز اے ڈائریکٹر, ناٹ مور دین دیٹ. یہ ایک اس میں یہ ایک پرابلم ہے جس کی وجہ سے لوگ اس طرف نہیں آتے کہ میں نے کمپنی نے تو اتنا زیادہ ٹیکس پے کر دیا, اب میں اس کو یوز کروں گا تو میں یوز نہیں کر سکتا, تو اس لیے کمپنی کی طرف نہیں آتے.
तीसरी बात जो है वो कंपनी की तरफ इसलिए नहीं आते कि एक तो कंपनी टैक्स पे कर रही है 29%, और उसके बाद जब वो उसमें से डिविडेंड मिल रहा है शेयर होल्डर को, तो उस डिविडेंड के ऊपर फर्दर टैक्स है। तो वो अगर से उसमें पहले टैक्स पे हुआ है, कंपनी ने उस टैक्स के ऊपर उसके ऊपर टैक्स पे किया हुआ है, अब वही रकम जो जाती है शेयर होल्डर को या डायरेक्टर को जाती है एज डिविडेंड, तो उसके ऊपर फिर दोबारा टैक्स है। वैसे कॉन्स्टिट्यूशनली तो डबल टैक्सेशन नहीं हो सकती, लेकिन इसके ऊपर ऑलरेडी जजमेंट्स मौजूद है कि डिविडेंड सेपरेट इनकम है, वो इंडिविजुअल की इनकम है, जो असल इनकम है वो कंपनी की इनकम है, इसलिए डबल टैक्सेशन नहीं। तो इस वजह से लोग इस तरफ से ये आने से गुरेज करते हैं। खजान तो समझ शेख साहब ने हमें एलएल की तरफ तवज्जो दिलाई कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2017 माहौल को थोड़ा सा लाइट करने के लिए जफर एसोसिएट्स डॉक्टर लिया जफर साहब ने मेरे साथ, अल्लाह ने मेरी रहमत करे, तो उन्होंने सोचा कि जफर एसोसिएट्स को एलएलपी कर दिया जाए। उसको हमने उसको एलएलपी किया, इंग्लैंड से रजिस्टर कराया और अपने बोर्ड के ऊपर लिख दिया जफर एसोसिएट्स एलएलपी। एक दफा एक बड़े बुजुर्ग वकील हमारे दफ्तर से गुजरे और वो एकदम ऊपर से ही चढ़ के आए बड़े गुस्से में। तो हाँ जी, क्या हुआ? कहते जी ये इतने बड़े वकील हो और आपका बोर्ड ही आपको पता नहीं कि आप इस पे लिखाया हुआ है, क्या हो गया? कहते जी वो एलएलबी की जगह आपने एलएलपी लिखा दिया है। तो इसलिए ये जो एलएलपी का कॉन्सेप्ट है ये हमारे मुल्क में अभी तक, हालांकि 2017 से ये कानून बना हुआ है, तो इसके बारे में बहुत सारे दोस्तों को मालूम नहीं है कि एलएलपी है क्या। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है वो तो 2020 से दूसरे मुल्कों में चल रही है, तो शुक्र है हमारे मुल्क में भी आ गई और हमें इसको भी दोस्तों को मोटिवेट करना चाहिए। बल्कि पिछली दफा भी जब यही एसईसी एक सेमिनार था तो उसमें मैंने यही कहा था कि इसमें जो एडवोकेट्स हैं वो लिमिटेड कंपनी नहीं बना सकते, अंडर द लॉ। तो वो इसलिए ये एक बेहतरीन मौका है कि हमें इस तरफ जाना चाहिए। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है उसके हमें फायदे अपने क्लाइंट को भी बताना चाहिए और हमें खुद भी मालूम होना चाहिए और हमें जो है वो इसकी तरफ आना चाहिए। इससे आपका स्टेचर जो है वो हाई होता है
आपका क्लाइंट जो है वो ज़्यादा सेटिस्फाइड होता है, आपके क्लाइंट को मालूम होता है कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा हूँ वो वेल ऑर्गेनाइज जो है अदारा है, और इसमें जो आपका जो रेट ऑफ फी है जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो भी बढ़ जाता है। तो इसलिए जो हमारे बच्चे, हमारे दोस्त जो नए इसमें एंटर हो रहे हैं, इस पर जरूर गौर कीजिएगा कि अपने क्लाइंट्स को भी बताएं और इसको खुद भी कोशिश करें और करें। एक बात जो रह गई वो ये थी कि जो अगर कोई शख्स SCCP में कोई फीस जमा करवा देता है तो गलती से, या उसको बाद में उसका कुछ जो है वो माइंड चेंज हो जाता है, तो वो जो पैसे उसने जमा करवाए हुए हैं उसका रिफंड का तरीका क्या क्या है। अक्सर दोस्त मुझसे पूछते हैं तो वो जी पैसे हमने जमा करवा दिए हैं, अब SCCP से उसका रिफंड क्या होगा। तो मैं ये चीज़ सबसे दरखास्त करूंगा कि इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो अगर अभी दे दें तो सारे दोस्त जो है उससे हो जाएगा। इसके बाद जो है एक और बात रह गई, वो ये है कि सीक्रेसी ऑफ बिजनेस। पाकिस्तान में, दूसरे मुल्कों में भी और है, पाकिस्तान में ट्रेंड ये है कि मेरे सीक्रेट्स जो हैं वो मेरे पास रहने चाहिए, वो दूसरों को नहीं मालूम होना चाहिए। तो जो आपने जिस तरह फैसिलिटेट कर दिया, अब हर शख्स जो है वो जाके उसमें सर्च करके 3000 रुपये जमा कराए और जो है उसको मेरे सारे मामला को देखता रहे, इसमें कौन डायरेक्टर है, किसके कितने शेयर होल्डर हैं, किसकी कितनी परसेंटेज है, किसका क्या शनाख्ती कार्ड नंबर है, किसका क्या एड्रेस है। तो ये मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर जो है वो कुछ रिजर्वेशन तो आ सकती हैं कि जी मेरी जो बिजनेस सीक्रेट्स हैं आपने उसको ओपन कर दिया है, ये शायद किसी वक्त आपके ऊपर ये ऑब्जेक्शन आए। अब एक आखिरी बात वो ये है कि इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ डायरेक्टर, वो जो है वो फौरी तौर पर लोग नहीं इंटीमेट करते, लोग जानबूझकर इंटीमेट नहीं करते। तो जो उसमें सर्च कर रहा है उसमें उसको तो यही मालूम है कि इसमें फलां शख्स डायरेक्टर है या फलां शख्स चीफ एग्जीक्यूटिव है, लेकिन उसकी डेथ हो गई होती है, उसको प्रॉपरली SCCP को इंटीमेट ही नहीं किया गया होता। तो इसके लिए मेरी दरखास्त ये होगी कि अगर आपके साथ अगर इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए नादरा के साथ, और जैसे ही किसी डायरेक्टर की डेथ हो तो वो फौरन जो है वहां इंटीमेट हो जाए कि इस बंदे की डेथ हो गई है, और उसमें जो बाद में जो हमारे मिसाइल बनते हैं, उसके शेयर ट्रांसफर होने होते हैं, उसकी इनहेरिटेंस होनी होती है, फिर प्लस जो उस कंपनी के साथ जो बंदा बिजनेस कर रहा है उसके साथ जो उसकी इंटरेक्शंस है उसको फौरी जो है वो इतला हो सकती है। काम सिर्फ इतना ही करना है कि नादरा के साथ जो है इसको इंटीग्रेट करना है। तो मैंने चूंकि एज ए पैटर्न मेरा ये फर्ज था कि मैं आपको शुक्रिया भी अदा करता, लेकिन ये हमारे जो मेंबर्स हैं उनके जो थ्रू आउट द कंट्री जो मसाइल हैं वो भी मैं आपसे आगाह करता। और ये मकसद ही यही है, मिलने का, बाहर मिलने का मकसद ही यही है कि हम एक दूसरे के मसाइल को समझें। और चूंकि SCCP का मोटो ही यही है कि हमने फैसिलिटेट करना है, तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि हम मिलेंगे, मीटिंग्स करेंगे। शहबाज सरवर साहब से हमारी मीटिंग्स होती हैं, हम उनकी मिसाइल करते रहते हैं, लेकिन विद अपॉलॉजी सम ऑफ द टाइम वो कहते हैं जी ये पॉलिसी मैटर है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं। तो मैं आज कमिश्नर साहब की यहाँ मौजूदगी का फायदा उठाते हुए वो बातें भी की जो कि हमें शहबाज सरवर साहब जो है हमें उसका कभी सही तरीके से कहते हैं मैं नहीं कर सकता, सही तरीके से वो हमारी हेल्प नहीं करते हैं। तो मेरी ये दरखास्त होगी कि जब सब दोस्त यहाँ जितने भी सारे सारी हैसियत लोग बैठे हैं तो इन मसाइल को काइंडली जो है वो कीजिएगा। आपने बहुत काम किया है। मैंने 1980 की मिसाल इसीलिए दी कि मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, कभी सोचा भी नहीं कर सकता था, मेरे जैसा आदमी नहीं सोच सकता था कि इतनी ज्यादा फैसिलिटीज हो जाएंगी कि मैं घर बैठे ही सारे काम कर दूंगा। तो ये सब क्रेडिट आप दूसरों को जाता है। अल्लाह ताला आपको इसका अदर दे, अल्लाह ताला आपको करे। थैंक यू सो मच सर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके चीफ गेस्ट कमिश्नर लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन डिवीजन SCCP मुजफ्फर अहमद मिर्जा साहब से कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मदद करने का।
शहबाज सर वैसे ऐसी बात नहीं, वो पॉलिसी मैटर में भी इंटरव्यू कर सकते हैं. First of all, I'm very happy to be amongst you. In fact, मैं खुद भी वकील रहा हूँ, third generation lawyer. My father was a Supreme Court judge. My brother was a Advocate General registrar, the Senator भी गए. मैं CCP से कोई 13 साल से associated हूँ. I've been part of the legal team. I was heading the legal team for 13 years. Allah has been kind to me. अब मैं थोड़ा सा ऑपरेशनल साइड पे आ रहा हूँ. Whatever you suggested is music to our ears. First of all, we are ready to help you out in any way possible, and that is why we are here. हमने अभी since I've joined, हम अब हर जगह कोशिश करते हैं, हर चेंबर में हर जगह जाएं, लोगों से इंटरेक्ट करें और उनसे मिलें और उनकी जो इश्यूज है, बिकॉज आप एंड यूजर्स हैं, या आप लोगों को हेल्प आउट कर रहे हैं, तो हमें वी हैव टू कम टू यू. और जो जो आपकी सजेशंस हमें मिली हैं, इंशाल्लाह I'll go back and I'll see whatever we can do, even if that requires amendment in the Companies Act. We are in the process of amending Corporate Companies Act. 200 amendments हम introduce कर रहे हैं, decriminalize कर रहे हैं चीज़ों को. हर चीज़ का थाना कचहरी काम नहीं है, उसकी हम पेनल्टी बेस्ड लेके आ रहे हैं. दिस वाज माय फर्स्ट. मैं प्रोसिक्यूशन बहुत ट्राई कर चुका हूँ, दैट डजंट वर्क इन दिस कंट्री. इट्स मच इजियर टू पुट अ पेनल्टी. लोगों को आप पेनलाइज करें थ्रू पेनल्टी या उनका काम करने से रोकें, लेकिन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज नॉट एडुकेट टू हैंडल द कॉर्पोरेट मैटर्स. सो हम डिक्रिमिनलाइज कर रहे हैं. कमीशन का हर वर्ड में हर चीज अप्रूवल थी. अराउंड आई थिंक मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द अप्रूवल्स आर बीइंग डन अवे विद. हमारे पास एक DOI का स्कॉट है, ही इज एन एक्सपर्ट, इंटरनेशनल एक्सपर्ट, उनके साथ हम काम कर रहे हैं. यू सी दीज चेंजेस. कॉर्पोरेट रिहेबिलिटेशन, रीस्ट्रक्चरिंग, इस एक्ट को भी आप लोग जरूर देखिए. रिवाइवल के लिए हैं ये कंपनी. आज अगर आपके क्लाइंट्स फंस जाते हैं बैंक रिकवरी के केसेस में और वो जेन्युइन डिफॉल्टर यानी वो डिफॉल्ट नहीं करता, सर्कमस्टेंशियल डिफॉल्टर है, एंड दैट कंपनी कैन ग्रो और रिवाइव इटसेल्फ. तो आप रिवाइवल प्लान लेके जाएं कॉर्पोरेट रिहेबिलिटेशन एक्ट के तहत. आज तक उससे चीफ जस्टिस वाला कोई पिटीशन आया, मैंने किसी को फाइल नहीं करता. आई ब्रॉट इन दैट लॉ. मैं जब 2012 में ज्वाइन किया, आई मेड अ पार्ट ऑफ IMF प्रोग्राम एंड वी ब्रॉट दिस against banking. पूरी banking industry was against it, but unfortunately nobody has used that law. So corporate rehabilitation, उसको भी हम under Prime Minister program हम जो कबातें थी उसमें कुछ वो हम दूर कर रहे हैं. That bill is there और हम protect भी कर रहे हैं. You will see we provide a lot of protection to entities which are regulated by CCP. जिनके businesses हम regulate कर रहे हैं, उनको further हम protect करेंगे from any harassment whatsoever. Delays since I've joined in, मैं खुद सुनता था कि सेक्शन 42 कंपनी जो है 1.5 साल में बन रही है, 2 साल में सफाशियां हो रही हैं. The timeline now is 3 to 1 week. 3 दिनों में आप अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट देते हैं, जितने भी हमारे 27 लाइसेंस हैं, उन सब की डिटेल्स के उनके साथ डॉक्यूमेंट कौन सा अटैच करना है is now on our website. You go and click and provide that documentation, and I show you अगर तीसरे दिन या 7 दिन, depending on the availability of officers, अगर आपको ओके नहीं होता तो then do let me know. ये possible. We are not going to put people कि 1.5 साल बाद वो बिजनेस स्टार्ट करे, 2 साल बाद वो आज लाइसेंस लेने आ रहा है ब्रोकर का, उसको 2 साल बाद. हम इंशाल्लाह भी वर्किंग ऑन वन डोर पॉलिसी, जहाँ एक बंदा अगर ब्रोकर का लाइसेंस लेना है, इंश्योरेंस का लेना है, वो एक सिस्टम में आएगा. एंड ऑल जो उसके हमारे जो रेगुलेटरीज हैं, CDC हो गया, PSX हो गए, मर्केंटाइल एक्सचेंज हो गई, so we'll all be now interlinked. So in very near future you will see these reforms coming. So we have जो छोटी इश्यूज हमें रोज फेस आ रहे थे, हमारा बहुत ज्यादा फोकस है इस वक्त सिंस आई जॉइंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट. हम चाहते हैं कि जैसी कंपनी बने, साथ ही उसका बैंक अकाउंट बन जाए.
آج بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے 4 مہینے بعد اکاؤنٹ کھل رہا ہے, اور وہ 4 مہینے میں اس کا جو اسٹارٹ اپ ہوتا ہے اس کو بہت پرابلم ہوتی ہے, بہت سی کمپنیاں ختم ہو جاتی ہیں. سو ویل بی سائننگ سیریمنی ود جیز اور بینکس کے ساتھ, ڈیجیٹل بینکس کو ہم کر رہے ہیں. ہم نے کل پرسوں تھوڑے دن پہلے ہم نے بینک ریزولوشن بورڈ ریزولوشن ان کو چاہیے ہوتا تھا اکاؤنٹ پہ, وہ بھی ہم نے ڈیجیٹل الاؤ کر دیا. تو یہ کیو آر کوڈ ہے, ڈائریکٹرز نہیں بیٹھے ہوتے تھے, میرے سے ڈسکس کر رہے تھے, میں نے کہا بھائی یہ تو ہمارا کام ہے, وی کین ڈو اٹ انڈر دا کمپنیز ایکٹ, تو وی ڈیڈ اٹ. اسی طرح ہمارے جب لائسنسنگ پروسیس پہ میں آیا تو انہوں نے کہا جی 4 سب سے زیادہ جو اعتراضات تھے that was on the affidavits provided by people. And I said, why do we need an affidavit? We are not going to go to the court for damages, یا اس کے لیے پولیس کا پرچہ تو نہیں کرائیں گے جھوٹا affidavit ہے, یا اس کو جا کے کیس تو نہیں فائل کریں گے. Because what we do is we file a winding up. تو ایک لائن ایک جگہ in the end of the form is good enough. اور اگر الیکٹرانک ہے تو وہ بھی ایک ٹک آ جائے تو that is good enough for us to wind up یا prosecute بھی کرنا ہوتا ہم کر سکتے ہیں. So we don't need for affidavit. اس سے ہمارے ٹائم پیریڈ بہت کم ہو گیا, ٹرن اراؤنڈ ٹائم ہم مچ بیٹر. دوسرا پالیسی کا کوئی ایشو نہیں, وی آر اوپن. آپ لاہور آتے ہیں لیکن اسلام آباد اتنا دور نہیں, آپ ہم سے ملیے, ہم اوپن دور ہیں. اسپیشلی میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں, ہم لائرس کے لیے میں نے آج تک کبھی روکا نہیں ہوں. جب میں ای ڈی بھی تھا تو جب بھی کوئی بھی لائر آتا تھا تو آئی ہیو ٹولڈ مائی سیکرٹری کہ آپ نے ان کو روکنا نہیں. میں اویلیبل نہ ہوں تو پہلے ان کو کمیونیکیٹ کر دیں, اور جب اگر وہ آئیں تو ان کو بٹھائیں, چائے بھی پلائیں, اور جب میں آ جاؤں تو میں ملوں. ان کو لیے ٹائم نہیں ہے. ہاں جی ووٹ مانگنے بھی آتے, ویسے بھی آتے, کام بھی لوگوں کو پڑتا رہتا ہے. تو وی آر آل اویلیبل. کوئی ایسی بات, ہم نے موبائل نمبر بھی آسان واٹس ایپ نمبر کیا جائے تاکہ آپ کی کوئی کوئریز ہوں ہم آپ کو رپلائی کر سکیں. تو شہباز صاحب کو بھی میں تاکید کروں گا, آپ کے پاس پالیسی ایشو ہے, یو جسٹ ریفر ٹو اس, وی آر پارٹ آف دس چین. یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو کہیں میرا کام ہے. کوئی بھی سجیشن آپ کو آئے, کوئی بھی مشکل آئے, آپ ضرور ہمیں فوراً اطلاع. اور آپ بھی ہمارے ای میل جو ہیں وہ ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے, یو جسٹ ای میل می. آپ کو یس پالیسی از ڈن ایٹ ہیڈ کوارٹرز, تو آپ ہم سے ملیں بھی. ہم اگر مل نہیں سکتے آپ ای میل کر دیں, واٹس ایپ نمبر ہے اس پہ کر دیں, وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. تو انشاءاللہ وی آر اویلیبل. ہم بہت سی چیزیں, آپ نے بڑی اچھی بات ایک کی کہ لوگوں کی انفارمیشن ول بی اویلیبل ٹو موسٹ آف دا پیپل جو ہمارے لائسنس ہیں. ایک تو سب کو نہیں ہوگی جن کے پاس لائسنس ہے, انٹرمیڈیٹ وہی لے سکتے ہیں, ان کے پاس ایکسیس بھی ہے. دیکھیں بزنس کمپنی بنانے کا مقصد ہی اور اوپن. ایک بندہ مسٹری میں کام کر رہا ہے, چھپ کے کام کر رہا ہے. کانسیپٹ آف دا کمپنی از if you put everything to a registrar جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ تھرڈ پرسن ہے, اور وہ جا کے آپ کی ساری انفارمیشن دے سکتے. آپ جھوٹی سچی دے سکتے ہیں. رجسٹرار کی آپ کو پتا ہے رجسٹرڈ ڈاکومنٹ کی پرزمپشن ہے کہ وہ کریکٹ ہوگا. تو رجسٹرار کے پاس کیوں آپ جمع کراتے ہیں؟ تاکہ کوئی بھی آپ کی جاتی چیزیں دے سکے, اور وہ پھر انڈیپینڈنٹلی ڈیسائڈ کرے کہ آپ کے ساتھ میں نے کاروبار کرنا ہے. اس کمپنی سے جو چھپ کے کام کر رہا ہے, جس کا کوئی پتہ نہیں کہ کیا پروفٹ بنا رہا ہے کہ نہیں بنا رہا, وہ کام کیا, اس میں ڈائریکٹر کون ہے, شیئر ہولڈر کون ہے, ساری انفارمیشن بیسکلی کمپنی لا کا مقصد اور ایک تھرڈ پارٹی رجسٹرار کے پاس ہونے کا مقصد یہی ہے کہ اس کی انفارمیشن اویلیبل. اور لوگ اس سے پھر دیکھ کے, بینکس نے قرضہ دیکھنا ہے, وہ اس کی سارے ڈائریکٹر دیکھتے ہیں, ان کے نام دیکھتے ہیں, وہ ان کی ریٹرنز دیکھتے ہیں کہ کیسے ہیں, اور اس پہ وہ ڈیسیجن لے لیتے ہیں. سو اچھا, ہماری انٹریکشن ابھی بینک سے بہت زیادہ جا رہی ہے. ہم نے بینکس کے ساتھ ابھی کراچی میں بھی کیا تھا ایک سیمینار, اینڈ وی وانٹ ٹو انشور کہ ہماری آن بورڈنگ اور آسان ہو جائے. ایک دن میں کمپنی بنے, 7 اکاؤنٹس بھی کھلیں, ہر قسم کی اس کو فیسلٹی اویلیبل ہو جائے. سو ہمارا بہت زیادہ فوکس اس وقت بھی ہے کہ فیسلیٹیٹ کریں. کہیں اگر آپ کو مجھے کوئی کہتا ہے کہ وہ اسٹرکچر طرح بیٹھے ہوتے ہیں, آبجیکشن لگائے جا رہے ہوتے ہیں, وی ناؤ آئی انشور کہ آبجیکشن بھی دیکھیں.
خام خواہ اگر آپ کو کوئی انجیکشن لگا رہا ہے, ڈیلے کر رہا ہے, تو وہ کوئی صحیح کام نہیں کر رہا. ڈسکریشن میں بھی آج بات کر رہا تھا ان سے کہ دا لا از ڈسکریشن اگر ہو تو وہ ڈسکریشن اس کے فیور میں کسی شخص پہ کرنا چاہیے. ڈسکریشن کو نہ یوز کرنا is if not illegal is not warranted. You have to use discretion in favor of a person جس کے لیے ڈسکریشن دی گئی. آپ چھپا کے نہیں رکھ سکتے کہ یہ میری پاور ہے, میں نہیں دیتا. آپ کو اس کے فائدے کی یاد کرتا ہوں, میں ان سب کو تاکید کرتا ہوں. پھر آرٹیکل 4 بھی میں ایک جگہ گیا کراچی میں, ہماری ایز اے ریگولیٹر پرزمپشن یہ رہی ہے کہ جس چیز کو کوئی پرسکرائب نہیں ہے اس کا رولز اینڈ ریگولیشن وہ پروہیبٹڈ ہے. حالانکہ ایسا ہے, آرٹیکل 4 تو کہتا ہے کہ جو پروہیبٹڈ ہے اس کے علاوہ آپ تمام کام کر سکتے ہیں. واٹ از ناٹ پروہیبٹڈ از پرمیسبل. تو میں نے کراچی میں کہا آپ لوگ تو ہر چیز پہ روک دیتے ہیں, ہر نئی چیز پہ روک دیتے ہیں. لیکن ریگولیٹری فریم ورک بہت سی چیزوں کا جب کوئی کاروبار یا کوئی نیا بزنس سٹارٹ ہو جاتا ہے تو ریگولیٹری فریم ورک اس کے بعد آتا ہے. کبھی بزنس جو ہے نا ریگولیشن اس کو پہلے نہیں آتی, ہمیشہ پھر ترقی پہلے آتی ہے, انوویشن ہو جاتی ہے, اس کے ساتھ پھر ایک ریگولیٹری فریم ورک آتا ہے. تو وی نیڈ ٹو چینج دیٹ آور ایٹیٹیوڈ. We need to be friendly. We need to take your advice and act on it. Powers ہمارے پاس ہیں amend کرنے کی اور ہم کرتے ہیں. کوئی بھی بات ہم سے آپ سے بات کی ہے, انشاءاللہ میں آپ کو ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ایک لکھ کے بھی ہمیں بھیجیے. اس کا یہ ہوتا ہے ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے کہ کہاں سے آئی ہے. تو اگر if it requires, I can promise you one thing. If it requires amendment in the law, we'll do that. If it can be done now, شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ اے جی او کا مسئلہ ہے, اف اٹ کین بی ڈن ناؤ وہ وی کین امپرووائز, تو ہم ریگولیشن میں کر دیں گے. نہیں کر سکے تو ہم امینڈ کر دیں گے. سو تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ اس. اور آپ اس پورٹل کو یوز کریں. یہ پورٹل میں جب آیا تھا یہ ہم نے بینکس کو دیے تھے, بینکس یوز ہی نہیں کر رہے. سو آئی ٹولڈ دیم کہ یار یہ آپ عام آدمی کو دیں جو ہمارا انٹرمیڈیٹ جس نے ہم سے لائسنس لیا ہوا ہے وہ یوز کریں. وہ بینکوں کو بھی وہی سروسز دیتا ہے. تو وہ بینک والے تو نواب ہوتے ہیں, وہ تو دیکھتے نہیں ہیں. تو ہم نے اس لیے یہ تھوڑی سی فیور یا سمجھے فیسلٹی دی ہے. اینڈ دس از ٹو اے لائسنس ہولڈر جس کو ہم سمجھتے ہیں, جس کا ہم بزنس ریگولیٹ کر رہے ہیں, ناٹ ٹو پبلک. یہ تھوڑا سا میں نے یہ پبلک کو ہم نہیں دے رہے, ہم اس شخص کو سمجھتے ہیں کہ وہ آنریبلی اور ریزنیبلی یوز کرے گا, اس کو مس یوز نہیں کرے گا. بٹ وی ناؤ آئی کیپ دیٹ ان مائنڈ کہ ہم ذرا اس کی انفورسمنٹ بھی تھوڑی سی ون اسٹیپ ناٹ اپ کریں کہ وہ کیا کر رہا ہے, کتنی دفعہ دیکھتا ہے, وہ ہم اس کا ڈیزائن کرتے ہیں کہ وہ مس یوز نہ کر سکیں. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ. تھینک یو سو مچ سر. ووٹ آف تھینکس کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا چیئرمین ایس سی سی پی, کوآرڈینیشن کمیٹی لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن, فارمر پریزیڈنٹ لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن شہباز صدیق صاحب سے. سر آپ باعث تشریف ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل چیف گیسٹ مظفر احمد صاحب, سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ آج ہماری یہ دعوت کا تشریف لانے کا. آنریبل گیسٹ آف آنر شہباز سرور صاحب, آج کے جو اسپیکر ہیں آصف مظفر شیخ صاحب, پیٹرن پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن رانا منیر حسین صاحب, آل کیبنٹ لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن, all officers from SCCP, distinguished guests, senior vice president یہاں پہ بیٹھے ہیں زاہد عتیق صاحب, فروق مجید صاحب, صاحب کا سیکرٹری یہاں پہ بیٹھے ہیں کاشف رانا کاشف اللہ ساکر منیر, ادر آل ڈسٹنگوشڈ گیسٹ, السلام علیکم. بہت اچھا ماشاءاللہ ایف آئی کے اوپر جو سیشن آپ نے آپ نے جو پریزنٹیشن دی بہت ہی انفارمیٹیو, شکریہ. تو جیسے پہلے جہاں صاحب نے بتایا نئی شاہ صاحب نے کر دیا مگر اس میں کچھ چیزیں جیسا کہ یہ بھی 4-5 ماہ کا جو سیشن ہے ہمارے چیف گیسٹ صاحب کا, ماشاءاللہ بہت ساری اصلاحات اور بہت جو اچھی جو اصلاحات ہیں ایس سی سی پی میں
कुछ जैसे कि कंपनी रेगुलेशंस 2024 का आना, जो मैंडेटरी फाइलिंग है फॉर्म 9, जो अभी रिसेंट हमने सेशन करवाया था टैक्स बार पे CTC के ऊपर, जो न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज हैं उनके शेयर से मुतल्लिका बहुत ही अच्छा जो SECP का एग्जाम है। जैसे SECP ईज ऑफ डूइंग के लिए काम कर रही है, बहुत सारे अच्छे इकदाम कर रही है, मगर यही मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन करें FBR के साथ भी, पराल वालों के साथ भी। जो आपका कहना है कि जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाते हैं डायरेक्टर के नाम पे आपके सिम इशू होनी चाहिए, जबकि इसके वाइस वर्सा भी रिसेंट जो FBR ने अपनी मॉडिफिकेशन की QR कोड के सिलसिले में, ना सिर्फ टैक्स गुजार को, तमाम टैक्स प्रैक्टिशनर्स को, सीनियर्स को, यहाँ पे सबको इम्तहान में डाला, बहुत मुश्किलात खड़ी की। और उस रिसेंट जो एक प्रेजेंटेशन यहाँ पे पराल की तरफ से यहाँ पे दी गई, जिसके एक क्वेश्चन के आंसर में उन्होंने कहा किसी दादी के नाम पे, किसी भाई के नाम पे, किसी के नाम पे आप अपनी सिम इशू करवा के चेंज करवा दें। तो ये मैं चाहूंगा कि आपकी इसके मौजूदगी का फायदा उठाते थोड़ा सा आप FBR को लूप में लें। आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा जो स्टेप था, सबसे पहला NTN एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, आपको NTN का जराब बहुत अच्छा एग्जाम है, जिससे बहुत से लोग बड़ी कबातों से यहाँ से सेफ हो गए। क्योंकि जब शख्स अपना बिजनेस शुरू करता है, एक उसके इनिशियल जो स्टेप्स है उसमें आपको इतनी प्रॉब्लम, खास तौर पे जो FBR का सिस्टम का ना चलना, चीफ एग्जेक्टिव यहाँ पे मौजूद है, सारा दिन बैठे, पता चला उसका वो सिस्टम नहीं चला, उसको कोड नहीं आ रहे, NTN नहीं जारी हो सका। माशाल्लाह जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है साथ ही उनको उसका पासवर्ड भी ईमेल हो जाता है, उनको NTN भी इशू हो जाता है। तो ये चीजें जैसे आप उसकी सलाहत की तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ ये खराबियां भी FBR की तरफ से आ रही, इनको जरा आप अपने एंड पे थोड़ा सा देखें। बाकी जिस तरह FI जो इसकी जो एक्सेस दी गई है पोर्टल की, अभी आपने फरमाया कि अभी सिर्फ इंटरमीडिएट को इसकी एक्सेस दी गई है। कितने इंटरमीडिएट हैं? बिल्कुल एक लिमिटेड से 20-25 होंगे, इससे ज्यादा नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि इसको ब्रॉडन किया जाए ताकि जितने प्रैक्टिशनर है उससे फायदा उठा सके। ये इसको काइंडली में ये तजावीज इसमें आप इसको अगर इसको समझे तो इसको जरा थोड़ा सा ब्रॉडन कर दिया जाए इसकी एक्सेस को। ऑनलाइन इंस्पेक्शन को जो है इसको एक अगर मिल जाए, वो भी एक ऑनलाइन इंस्पेक्शन भी तो टाइम सेविंग भी है, सबके लिए सहूलत भी है। इस पे भी जरा थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आपकी तरफ से इसमें है। बाकी बहुत सारे जो इकदाम जो आपने जिस तरह अभी आपने बताया, हम उसकी जो इस्लाहात आई उसको सराहते हैं। बस इसके साथ ही कुछ जो अभी रामजीत साहब ने एक बहुत ही वैलिड तजवीज़ के अकाउंट्स जो है फाइलिंग की जो है फॉर्म फाइलिंग की डेट है उसको भी कंपनी की जो इनकम टैक्स की रिटर्न है उसके साथ कर दिया जाए, ताकि जो अनड्यू डिफॉल्ट और क्योंकि अकाउंट्स के बगैर फॉर्म फाइलिंग होती है, बाद में पेनल्टीज आती हैं। एक तो टाइम भी सेविंग है, एक अनड्यू लिटिगेशन से भी जो निजात मिलेगी। इन चीज़ों के साथ बाकी वंस अगेन थैंक यू ऑल ऑफ यू, ऑल पार्टिसिपेंट्स। आपने पेशेंस हियरिंग से आपने आज जुमे के मुबारक दिन में अपना टाइम निकाला और पेशेंस हियरिंग की। ना सिर्फ हम ये टैक्स बार में यहाँ पे मौजूद है, हमारा ये साथ एक लाइव भी चल रहा होता है जिसमें डिफरेंट बार भी हमारे साथ इस समय एसोसिएटेड है। ये सिर्फ हम अभी लाहौर टैक्स बार में नहीं, डिफरेंट बार भी हमारे साथ एसोसिएटेड है। और बाद में ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल है कि ये जितनी आपकी ये डिस्कशन है, ये पूरा सेमिनार बाद में भी हम इसको देख सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सेक्रेटरी साहब, ऑल कैबिनेट लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन, थैंक यू वेरी मच। एक मिनट, आपका ईमेल अकाउंट है जहाँ पे हम आपको हम उसको डायरेक्ट आपको अपलोड करते हैं। वो कई जगह सेमिनार कर रहे होते हैं, कई चीजें हो रही होती हैं, तो आपको अपलोड भी करते हैं। आप कल का या मंडे का सजेशंस भी आते हैं, मंडे को कंफर्म बैठता है। तो हम और लॉयर जो है ना, ये इसलिए भी बन गए। मैं